Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as an elective of 5th semester Mechanical Engineering, Unit 6 Economic Analysis of Power Plants. Topic 1 Introduction to Economic Analysis of Power Plants. Lecture number 23 prepared by Mrs. Amruta Munle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of today's lecture as prediction of load and its necessity. Factors affecting choice of power plants for operation. Different terms used in economic analysis of power plants. Learning outcomes. After completion of this video lecture, you are able to estimate cost of electricity in the given situation using simple numerical problems. Program outcome will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. So let us start prediction of load and its necessity. Installation of a power plant in a particular region depends upon the maximum demand of power for that region. तो पावर प्लांट का अगर हमें इंस्टॉलेशन बनाना है या फिर पावर प्लांट को जनरेट करना है तो हमें उसके मैक्सिमम एरिया की डिमांड उस पर पावर प्लांट की कैपेसिटी डिपेंड करती है. Therefore, the power demand for particular region must be known, which is a deciding factor in selecting the capacity of power plant. तो उस एरिया की पर्टिकुलर डिमांड पावर कैपेसिटी की कितनी है ये फाइंड करके हम उसके फैक्टर सिलेक्शन कर सकते हैं फॉर पावर जनरेशन. The prediction of load is done to estimate the total amount of load required to be met for various purposes. तो prediction of load क्या है? Estimate the total amount of load required to be made for various purposes. तो prediction of load is nothing but the total load of this power plant for using different purposes. This helps in installation of a new power project or for the expansion of existing power plant. तो ये prediction of load के वजह से हम पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं डिफाइंड कैपेसिटी से या फिर जो हमारा प्रीवियस पावर प्लांट है उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं. There are two different methods available to forecast the future load requirement of any region. Through it is difficult and complex to find the exact demand, but approximate estimate can be made. तो हम approximate estimation of load calculate कर सकते हैं, exact value calculate करना possible नहीं. First is a statistical method and second is a field survey method. ये दो मेथड का यूटिलाइज कर से हम प्रेडिक्शन ऑफ लोड कैलकुलेट कर सकते हैं. So let us discuss factors affecting choice of power plants for electricity generation. तो देखते हैं in case of large base load power plants like hydro power plant, steam power plant, type of fuel available, consider the following examples. तो अगर हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना है या स्टीम पावर प्लांट बनाना है, जो भी टाइप्स का पावर प्लांट रहेगा तो ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ लोड पे और टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज़ और अवेलेबल रिसोर्स पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से पावर प्लांट को जनरेट करना है. When we situated a steam power plant is preferred then if coal mines are located nearby, whereas hydro power plants is installed if water is available in a large and abundant quantity. तो अगर हमें स्टीम पावर प्लांट के बारे में सोचना है तो कोल माइंस नियर टू प्लांट होना चाहिए और अगर हम जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरफ तो वाटर इजीली अवेलेबल होना चाहिए इन लार्ज एंड गुड क्वांटिटी. वैसे ही फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये भी हमें डिपेंड करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ पावर प्लांट के लिए.
requirement and cost of land and cost of foundation. It is also affected the choice of power plant, cost of equipment for transmission of energy. जहाँ से हमारा पावर प्लांट से लोड सेंटर तक लोड जाएगा और हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे, उसकी भी कॉस्ट कितनी आती है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी को, ये भी हमारा फैक्टर अफेक्टिंग होता है चॉइस ऑफ पावर प्लांट के लिए. अवेलेबल ऑफ कूलिंग वाटर, टाइप्स ऑफ लोड्स, साइड ऑफ पावर प्लांट्स, जनरेटिंग यूनिट, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारे चॉइस ऑफ पावर प्लांट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इसके बेस पे हम पावर प्लांट को डिज़ाइन करके डेवलप करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. जब हम पावर प्लांट बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमें ये सारे फैक्टर्स या ये सारे पॉइंट्स को सोचना बहुत ही ज़रूरी है. Without this, you cannot be able to make or construct power plant. So let us discuss different terms used in economic analysis of power plants. तो हमने कुछ लेक्चर से देख रहे हैं स्टार्टिंग से कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, स्टीम पावर प्लांट होता है, गैस टर्बाइन पावर प्लांट होता है, डीजल पावर प्लांट होता है और ऐसे ही वेरियस टाइप्स के पावर प्लांट्स हमने पढ़े हैं. अब उसी पावर प्लांट के बारे में हमें पढ़ना है कि उसमें किस तरह से कैलकुलेशन करके उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं. तो पावर प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कनेक्टेड लोड. तो ये लोड हमें पता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होगी या किस एरिया की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ये होता है हमारे पावर प्लांट का लोड. तो ये कनेक्टेड लोड रहेगा. द कनेक्टेड लोड इज द सम ऑफ रेटिंग इन किलोवाट of the equipment installed in the consumer's premises. मीन्स जो भी हम लोड यूज़ करेंगे अपने घर में डिफरेंट अप्लायंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, जिसका जो टोटल रहेगा सम ऑफ ऑल लोड्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए कनेक्टेड लोड. द कनेक्टेड लोड्स इन द प्रीमाइसेस ऑफ ए कंज्यूमर आर शोन इन फिगर. तो इस फिगर में हमें शो हो रहा है कि एक मेन ट्रांसफॉर्मर है और उससे कनेक्टेड डिफरेंट लोड्स है. फर्स्ट कंज्यूमर का लोड आता है 30 किलोवाट, सेकेंड है 20 किलोवाट और थर्ड है हमारा 10 किलोवाट्स. तो इसकी टोटल डिमांड होगी कनेक्टेड लोड की सम ऑफ ऑल लोड्स मीन्स 30 किलोवाट प्लस 20 किलोवाट प्लस 10 किलोवाट्स इक्वल टू 60 kilowatts. That's the connected load is a 60 kilowatt. Let us discuss about demand. तो देखते हैं डिमांड क्या होती है. तो हमारी जो कैपेसिटी हम डिमांड करते हैं कि ज़रूरत, जो ज़रूरत पूरी होगी दैट इज़ कॉल्ड एज ए डिमांड. तो डिमांड के बारे में देखते हैं. द डिमांड ऑफ एन इंस्टॉलेशन इज द लोड which is drawn from the source of supply at the receiving terminals, average over a suitable and specified interval of time. तो डिमांड क्या है, हमारी लोड कैपेसिटी से जो हम अप्लाई करते हैं, जो सप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं डिमांड. तो अभी हमने देखा कनेक्टेड लोड्स. तो ये कनेक्टेड लोड्स जो है ये हमारी होती है डिमांड. इसके पूरा हमने सम कर लिया जितने भी अप्लायंसेस हमने घर में यूज़ किए, दैट इज़ कॉल्ड एज ए डिमांड. तो डिमांड हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट से, लाइक दैट किलोवाट, किलोवाट एम्पियर या एम्पियर और अदर सूटेबल यूनिट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम देखते हैं मैक्सिमम डिमांड. द मैक्सिमम डिमांड ऑफ एन इंस्टॉलेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिमांड्स विच हैव अकर्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड. तो मैक्सिमम डिमांड क्या है? डिमांड तो हमने समझ लिया कि सम ऑफ ऑल लोड्स या फिर हमारी जो चॉइसेस रहेगी, ये जो सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से वो रहेगा हमारा डिमांड. तो मैक्सिमम डिमांड क्या है कि जिसके ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक दैट फैन. फैन के बिना हम नहीं रह सकते. तो ये क्या है हमारी फैन की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड एज ए मैक्सिमम डिमांड. It is a maximum load which consumer is likely to draw at any time. Therefore, it is also called as peak demand and peak load. Let us discuss about demand factor. तो demand factor क्या होता है? It is a ratio of demand factor. It is a ratio of maximum demand to connected load. जब हम दो चीज़ें लेंगे
one is a maximum demand, or connected load is a sum of all loads using consumer appliances premises. So that ratio is called as a demand factor. तो इस डिमांड फैक्टर जो रहेगा मैक्सिमम डिमांड फैक्टर होता है यूनिटी, इससे ज़्यादा हमारा डिमांड फैक्टर नहीं आता। यानी डिमांड फैक्टर का जो रेशियो फॉर्म आएगा या फिर वैल्यू आएगी वो 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं रहेगा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम डिमांड एंड कनेक्टेड लोड है, दोनों के यूनिट सेम है, तो हमारा डिमांड फैक्टर का जो यूनिट रहेगा ये यूनिटलेस टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एवरेज लोड। द एवरेज लोड इज कैलकुलेटेड एज द एरिया अंडर द लोड कर्व, that is a energy in kilowatt hours divided by time period in 24 hours considered to draw the load curve. Average load is equal to area under the load curve upon 24 hours. एरिया अंडर लोड कर्व क्या होगा हमारा, एनर्जी कंज्यूम इन 24 आवर्स अपॉन 24, तो इसका यूनिट आएगा किलोवाट आवर्स। ऊपर की जो टर्म्स है एनर्जी कंज्यूम ये किलोवाट्स में है और नीचे हमारा आवर्स है, ये मिला के हमारा हो जाएगा किलोवाट्स आवर्स। एवरेज लोड। लेट अस डिस्कस अबाउट लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर इज ए रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द पीक ऑफ मैक्सिमम लोड डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर। तो लोड फैक्टर को हम नोट करते हैं एफ से, और इसका रेशियो होगा एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम लोड और पीक लोड। तो लोड फैक्टर इसको हम अदर टर्म्स में लिख सकते हैं, एवरेज लोड होता है हमारा टोटल एनर्जी कंज्यूम इन 24 आवर्स अपॉन मैक्सिमम डिमांड और लोड इनटू 24। द लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस दैन यूनिटी। तो लोड फैक्टर हमेशा 1 से कम आएगा, यूनिट 1 से कम आए। और द पावर प्लांट्स विच आर यूज टू टेक द बेस लोड run on a high load factor, and the power plants which are used to take the peak load run on low load factor. Next देखते हैं हम लोग diversity factor. Diversity factor is defined as the ratio of sum of the maximum demands of the individual of the consumers and the simultaneous demand of the whole group during a particular times. तो डाइवर्सिटी फैक्टर रहेगा सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड्स टू द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड, एज द टोटल मैक्सिमम डिमांड रिक्वायर्ड at any time during the day is less than the sum of maximum demands due to diversity. The total load factor of the system increases, which is desirable for the economic operation of the power plant. तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल मैक्सिमम डिमांड्स टू द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड्स, दैट इज कॉल्ड एज ए डाइवर्सिटी फैक्टर। और ये भी टर्म हमारी हो जाएगी यूनिट लेस, बिकॉज रेशियो ऑफ द सेम टर्म सेम यूनिट्स। लेट अस डिस्कस अबाउट प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, अगेन इट इज ए रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो हम इसके बारे में देखते हैं कैपेसिटी फैक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू प्लांट कैपेसिटी इन पर्टिकुलर टाइम। अगर हम एवरेज लोड 24 आवर्स का ले रहे तो प्लांट कैपेसिटी भी हमें कितनी लेनी है, 24 आवर्स की। तो टाइम हमारा सेम हो जाएगा, तो ये अगेन इट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू प्लांट कैपेसिटी। तो एवरेज लोड क्या होता है, इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ पीक लोड टू लोड फैक्टर। तो यहाँ पे हमने एवरेज लोड का फॉर्मूला डाल दिया, पीक लोड टू लोड फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी एज इट। तो अगेन हम इसको बोल सकते हैं एवरेज डिमांड पर ईयर और एनुअल एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन प्लांट कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर, दैट इज ए प्लांट कैपेसिटी। लेट अस डिस्कस अबाउट प्लांट यूज फैक्टर।
तो प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है? प्लांट यूज फैक्टर इट इज ए रेशियो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन गिवन टाइम टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी that could have been produced during the actual number of operation. It shows that plant use factor is a annual energy produce. एक साल में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी टू द कैपेसिटी ऑफ प्लांट इनटू नंबर ऑफ आवर्स द प्लांट इज इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर. यानी प्लांट की कितनी कैपेसिटी है और कितने आवर्स एक साल में हमें यूटिलाइज किए एनर्जी प्रोड्यूस करने के. दैट्स रेशियो इज कॉल्ड एज ए प्लांट यूज फैक्ट. देन देखते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर. तो यूटिलाइजेशन फैक्टर अगेन इट इज ए रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी जनरेटर डिमांड टू ए जनरेटर कैपेसिटी. यानी मैक्सिमम जो जनरेटर डिमांड रहेगी, प्लांट की जनरेटर डिमांड रहेगी, उससे हमें डिवाइड करना है जनरेटर कैपेसिटी. यानी एक एरिया की जो डिमांड है मैक्सिमम डिमांड वो रहेगी ज़्यादा और हमारे प्लांट की कैपेसिटी रहेगी कम. दैट इज कॉल्ड एज ए यूटिलाइजेशन. Now the time is to discuss unit outcome achieved by this video lecture as estimate cost of electricity in the given situation using simple numerical problems. Summary of today's lecture. तो आज हमने देखा prediction of load and its necessity, factor affecting choice of power plants for electricity generation. Also you have to discuss different terms used in economic analysis of power plant to calculate the estimate cost of electricity. Program outcome achieved by this video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped. Now the time is to give some assignment and this assignment is a assignment number 23. All of you note all the questions of this assignment and try to solve in your copy and upload in Genuino site as a assignment number 23. Question 1 is define prediction of load and its necessity. Explain factors affecting choice of power plants for electricity generation. Define the following with formulas as connected load, utilization factor, plant use factor, plant capacity factor, diversity factor, load factor, average load, demand factor and maximum demand. For solving this assignment, watch this video again. Understand the concept of this video and solve this assignment. If some difficulty is there, refer the notes and then contact to subject teacher for better understand of this topic. Thank you. Happy learning.